अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ फ़ीमा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ां व शिकस्तां रात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती गौत आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Respected brothers, my sisters, mothers and all those who are listening, watching, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's present Guldasta of Durudo Salam in the court of the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala, our master of universe, master of all the messengers, our beloved of Allah, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and recite after me, say as-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah, as-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah, as-salatu was-salamu alayka ya Nabiy Allah, sallallahu ta'ala alayka wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to me to speak the truth and give tawfiq to you and all of us to listen and follow the truth always. Today I have recited a verse from Surah Az-Zumar, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ। और वो जो सच्ची बात लेकर के आया और जिसने उस सच्ची बात की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तकून, वही सबसे बड़े मुत्तकी हैं। Those are the most pious people in this world. The one who believed in Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Many of Mufassirin al-Kiram, they have mentioned that this verse, in this verse, was saddaqa bihi, particularly this part of this verse, it is talking about Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Do you know who is Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an? Without his zikr, the history of Islam would not be complete. Without his sacrifices and all the things which he did for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and for Islam, if you start counting it, you can't count this.
Because beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam himself says, who saying is this? ये कौन फरमा रहे हैं? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And you know that who is Rasulullah? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he is the biggest namer, biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given us many ni'mats, favors. ये पूरी दुनिया अल्लाह की नेमतें हैं. Every single thing which we are enjoying nowadays, these all are favors of Allah subhanahu wa ta'ala. But upon all these favors, Allah never mentioned that I did ihsan. मैंने तुम पे एहसान किया. अल्लाह ने कभी ये नहीं फरमाया. लेकिन बात जब हुजूर की आई, बात जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, अल्लाह says, look, when I sent down my beloved, मैंने जब अपने महबूब को तुम्हारे बीच में भेजा, तो मैंने तुम पर एहसान किया, तुम पर एहसान किया. That is what Allah says in Quran. And now listen what Mustafa says in Hadith. हुजूर फरमाते हैं, जिनको भेज के अल्लाह ने पूरी दुनिया पे एहसान किया, वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने सब पे. You know that we know that the entire world knows that how many favors Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has done for us. We can't count. जितने एहसान हुजूर ने हम पे किए, हम उसको गिन नहीं सकते. But Rasulullah himself says, हुजूर फरमाते हैं, इस दुनिया में सिद्दीक अकबर ने मुझ पर इतने एहसान किए, इतने एहसान किए, इतने एहसान किए कि अगर किसी को खलील बनाना होता इस दुनिया में, तो मैं अबू बकर सिद्दीक को अपना खलील बना लेता. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saying, Siddiq has done so many favors to me. Who saying? Rasulullah saying this. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this same hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, if you know the old history, the beginning history of Masjid Nabawi, that there are many doors for Masjid Nabawi. Masjid Nabawi के कई दरवाजे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में. And at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, मस्जिद के सारे दरवाजों को बंद कर दो, लेकिन एक दरवाजा जो सिद्दीक अकबर का दरवाजा है, उस दरवाजे को बंद मत करना, उस दरवाजे को बंद मत करना. सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, definitely without any doubt, certainly without any dispute, Siddiq Akbar is best amongst this ummah after messengers and angels. अंबिया, मलाइका, मुरसलीन, इनके बाद अफदलुल बशरी बादल अंबिया, मलाइका और अंबिया, मुरसलीन और अंबिया के बाद इस मखलूक में, इस उम्मत में सबसे अफजल जो जात है, उस जात का नाम है सिद्दीक अकबर. सिद्दीक अकबर. As you know that the series which we are, alhamdulillah, in the third session of this series today, tonight we are. It is a series about Hijrah to Karbala. Hijrah to Karbala. Last 2 days we spoke about beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam and oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we're gonna know inshallah Nazim how did this hijrah happen, when happened. If we talk about hijrah, obviously this session will be not enough for us, so I will just give some indications. I will just mention few points, then we move on towards our journey inshallah. Hijrah, it was after 13 years after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced his nubuwwat. हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाई, उसके 13 साल बाद हुजूर ने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत की. So that was the not first migration. The first migration was towards Ethiopia. Today's Ethiopia, हबशा की तरफ थी. मुसलमानों ने सबसे पहले वहां की तरफ हिजरत की, उसके बाद हुजूर ने मदीने की तरफ हिजरत की. Here you know the importance of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. हुजूर ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, nobody knows. Allah knows, Rasulullah knows. And the time, अभी अल्लाह ने हुजूर को हुक्म नहीं दिया कि कब जाना है. Allah subhanahu wa ta'ala informed Rasulullah that you have to migrate from Makkah to Medina, but what is the time? Allah subhanahu wa ta'ala didn't order.
अल्लाह ही didn't come out, अल्लाह ने अभी हुक्म नहीं दिया कि किस पर्टिकुलर टाइम में आपको जाना है, स्पेसिफिक टाइम में. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, this secret of Allah, with the will of Allah, is sharing this secret, Rasulullah sallam sharing this secret only with single personality who is called Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. The third person who knows that we have to migrate, हमें हिजरत करना है, after Allah tabarak wa ta'ala, Allah जानता है. And the second person on this earth after Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam who knows this is Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. हुजूर फरमाते हैं कि अबू बकर, वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब हमें हिजरत करना है. Here all the preparations, who is doing this preparations? Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. सारी तैयारियां कर रहे हैं. If you look at the hijrah, from the transport, from the security, okay, from the travel guide, and from the food, everything was managed by Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. अब जरा सोचें, जिनको लेने के लिए सवारी मेराज में जन्नत से आ रही है, जन्नत से आ रही है, उनकी सवारी का इंतजाम जमीन पे कौन कर रहे हैं? सिद्दीक अकबर कर रहे हैं. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेवर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सिद्दीक अकबर. हिजरत की वो रात आई, हुजूर ने फरमाया कि नाउ वी हैव टू माइग्रेट, अब हमें हिजरत करना. हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ निकले. हिजरत में जो भी चीजें हुई, इंशाअल्लाह अज़ीम इन कमिंग डेज we will be doing a special session in which we will mention how did migration hijrah happen and क्या lessons हैं हमें उसमें. we will discuss on this inshallah al-azim. But now very few points. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर he is the second caliph of Islam, ये दूसरे खलीफा इस्लाम के. One is the, ये जो रिवायत है, it is narrated by Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu himself. When this narration, Hazrat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala was narrating, he was tearing up. वो रो रहे थे. And he was saying, सिद्दीक, आप मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां ले लो, मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां. You take all the good things which I have done in my entire life, take it. और मुझे अपनी जिंदगी की सिर्फ एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दो. एंड विच इज दिस वन नेकी? कहते हैं वो गार में जो तुमने नेकी की थी ना, गार में हिजरत के वक्त में, वो एक नेकी मुझे दे दो, बाकी सारी नेकियां तुम ले लो. हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि once I was sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Here there is a lesson for all these guys, those who are married people. एक बात याद रखिए कि जो बीवी होती है, वाइफ, she always expects to listen from her husband that he praise her family. वो हमेशा चाहती है, ठीक है. and it is sunnah of our mother Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala. कहते आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है. आप बैठी थी and they was sitting in an open air with Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. तारों की तरफ देख रहे हैं. तारों की तरफ देखते देखते हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये जो तारे हैं, look at how many stars are there in sky. क्या किसी की नेकियां इन तारों के बराबर हैं? क्या इन तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, yes, हाँ हैं इन तारों के बराबर. She asked, who is this great person या रसूलल्लाह? हुजूर ने फरमाया, उमर इब्न खत्ताब. उमर इब्न खत्ताब. Then सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु anha got silent, खामोश हो गई. हुजूर ने जान लिया कि she was expecting another answer. Then he asked, क्या हुआ आयशा, what happened? She replied, no ya Rasulullah, I thought the answer would be, she was talking to something like that with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I know what you want to ask. You want to know how much नेकीज of your dad Abu Bakr Siddiq, आपके वालिद की नेकियां कितनी हैं, आप ये जानना चाहती हैं. हज़रत आयशा ने मुस्कुराई, हज़रत आयशा मुस्कुराई, कहती हैं, हाँ या रसूलल्लाह, हाँ मैं जानना चाहती हूँ. I want to know कि मेरे डैड, मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां कितनी हैं. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, listen what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. हुजूर फरमाते हैं, आयशा सुनो, उमर की उम्र भर की नेकियां, उमर की
उमर भर की नेकियां, द नेकीज ऑफ हिज एंटायर लाइफ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की और सिद्दीक की एक रात की नेकियां दोनों बराबर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, अज़मते सहाबा, नारे तहकीक। So Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala, and here I want to clarify one thing. Many of our friends, they say कि जैसे दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. No, the faith of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, the Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, including Sayyidina Ali karramallahu wajhahul kareem, Ali radiallahu ta'ala himself, his faith, his beliefs, उनका मानना ये था कि सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक अकबर इज ऑन फर्स्ट नंबर, अफदलुल बशरी बादल अंबियाई बित्ताकीर. Just show me any masjid from east to west, from north to south, in the Jummah khutbah, is anyone says that Abdul Bashari Ba'd al-Anbiya bit-Tahqiq Ali ibn Abi Talib, is anyone says this? No, everybody says Abdul Bashari Ba'd al-Anbiya bit-Tahqiq Khalifatul Muslimin Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. This is the true faith, it is the true अकीदा. ये सच्चा अकीदा है. ये अकीदा सहाबा का भी था, ताबईन का भी था, तबे ताबईन का भी था, आइम्मे मुज्तहिदीन का भी था, औलिया का भी था, गौसो ख्वाजा अब्दाल अख्तार, पूरी उम्मत का ये अकीदा है कि पूरे सहाबा में अगर सबसे अफजल कोई है तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला. ये अकीदा इंक्लूडिंग सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला. हज़रत अली himself he says many times, he said there are many narrations, ये फरमाते हैं बैर कर. तो सिद्दीक अकबर का पूरा मर्तबा हम बयान नहीं कर सकते, बस मैंने जो रिवायतें आपके सामने रखी हैं, यू हैव गॉट एन आइडिया दैट व्हाट रैंक ही हैज. अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा दिया, क्या मकाम अता फरमाया था, और ये मर्तबा अल्लाह ने क्यों अता फरमाया उनको. दिस इज द क्वेश्चन. हजरत उमर who fought for Islam, Hazrat Usman who spent his all his wealth for Islam, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala who sacrificed his family for Islam. Then why Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala is superior than all other companions? सारे सहाबा से सिद्दीक अकबर क्यों बड़े हैं और अजमत वाले हैं, मर्तबे में सबसे अफजल क्यों हैं? What is the reason behind this? कभी सोचा आपने इसकी वजह क्या? बहुत सारी वजूहात होती हैं, बट जो वजह मुझे समझ में आ रही है वो ये कि जितनी सोहबत, जितना टाइम सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, इतना वक्त गुजारना किसी और सहाबी को मैसर नहीं आया. ये हुजूर की सोहबत की बरकत है कि अल्लाह ने सारे सहाबा में उनको मुमताज बना दिया. लुक वेयर ही इज. सबसे पहले इस्लाम लाए, सबसे पहले इस्लाम लाए बड़ों में. He was the one of the first person who accepted Islam. इस्लाम लाए, उसके बाद पूरे मक्का में हुजूर के साथ रहे. In every moment, सफर में, हजर में, काबे की दीवारों के सामने, दावत देते वक्त, नमाजों के वक्त, हर वक्त हुजूर के साथ रहे. और जब हिजरत की बात आई तो ना हजरत उमर थे, ना हजरत अली थे, ना हजरत उस्मान थे. हिजरत के वक्त भी अगर सरकार के साथ कोई थे तो हजरत सिद्दीक अकबर थे. उस गार में, गारे सौर में, वहां भी अगर कोई साथ थे तो वो सिद्दीक अकबर थे, सिद्दीक अकबर थे. यहां तक कि जब विसाल हो गया हजरत सिद्दीक अकबर का, तो आपने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के सामने ले जाओ, हुजूर के रोजे के सामने ले जाओ और इजाजत मांगो. ले गए. ले जाने के बाद जब सामने से इजाजत मांगी गई तो हुजूर के रोजे से आवाज आई, रोज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आवाज आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब. हबीब को हबीब से मिला दो. सिद्दीक मक्का में, मदीना में, हिजरत में, गार में, सफर में, हजर में, हर मोड़ पे मेरे साथ था. कब्र में भी वो मेरे साथ होगा, कब्र के बाद भी मेरे साथ होगा. और नबी के पहलू में सबसे पहले जिसे जगह मिली वो जात है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु. अब मैंने गार की बात की,
Allah himself mentions this in Al-Quran. Thani Yathnayni idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Here I can see many students of Alim class. You also may know a Arabic grammar. Huma. What is Huma stands for? Huma zamir, it is for dual. जब दो लोग होते उनको एक ही वर्ड के साथ अगर याद करना हो तो हुमा का इस्तेमाल होता है. अब अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसको हुआ कहते हैं मुज़क्कर में. अगर दो है, दो की तरफ करना है इशारा तो हुमा कहते हैं तस्निया. तो यहां हुमा जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इद हुमा फिल गार, व्हेन दे बोथ वर इन द केव, जब वो दोनों गार में थे. हुआ दिस टू, वन इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनदर इज सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु. यानी जिस ज़मीर में अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र किया उसी के साथ सिद्दीक अकबर का जिक्र किया. कुदरत भी बता रही है कि सिद्दीक का साथ जैसा नबी के साथ है वैसा किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता. एंड if you been to Ghar Hira or Ghar Thawr, then you know how difficult climbing on Ghar Thawr. You can't make it, I think. If you go by walk, it is very difficult. My personal experience, we've been on Ghar Hira, but when it comes to Ghar Thawr, it is much higher, longer than Ghar Hira. Ghar Hira से ज़्यादा ऊंचाई है. Look at the law of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. The law. सिद्दीक के अकबर की अजमत उनके मकाम और मर्तबे की वजह नॉट हिज इबादत, नॉट हिज प्रेयर्स. उनकी इबादतें रोज़ा ज़कात सौम सलात नहीं है. एक्चुअली द लव ही हैव फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहब्बत उन्होंने हुजूर से की वो है वजह. If you been asked, if you was asked to take your kids lifting and you have to climb on the mountain, will you be ready? You can't. Maybe few steps after that you will ask to your kid very nicely, बेटा नहीं हो रहा है, माफ करो, पैदल चलो, है ना. Even not on a mountain, पहाड़ पे नहीं, अगर यहाँ पे भी जाना होगा ना तो मे बी 1 किलोमीटर आप चल सकते हैं. लेकिन जरा देखो हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को देखो. He lifted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on his shoulders. हुजूर को उन्होंने अपने कंधों पे बिठाया. कंधों पे बिठा करके हजरत सिद्दीक अकबर was climbing on this mountain. वो गारे सौर पे चढ़ते हैं. अब कंधे पे हुजूर को इन्होंने बिठाया. जब माउंटेन उस गार के दरवाजे पे पहुंचे, द डोर ऑफ दिस केव, he asked रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप यहाँ रुके. I will go inside, I will clean the cave. मैं गार को साफ करूंगा, फिर मैं जाके देख लूं, इत्मीनान कर लूं इट इज सेफ और हुजूर वहां आ सकते हैं, तो फिर मैं आपको दावत दूंगा. अल्लाह अकबर. गए, उठा के तो खुद गए थे लेकिन आराम खुद नहीं किया, आराम खुद नहीं किया. हुजूर को फरमाया कि आप इंतजार करें. गए, साफ किए, फिर हुजूर को बुलाया और हुजूर को अपने जानवे मुबारक पे सर रखा करके आराम कराया. सुभान अल्लाह. यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाहिरी तौर पे इफ यू मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग, अगर आप मादी तौर पे जाहिरी तौर पे सोच रहे हैं तो यू मे बी थिंकिंग कि उठाया तो सिद्दीक अकबर ने था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे पे, सो ज्यादा तो उनको थकना चाहिए, है ना. लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने जिसे उठाया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. मुस्तफ़ा जाने रहमत है. दुनिया के किसी आम आदमी को उठाओ, हो सकता है थक जाओ, थकान हो जाए, तकलीफ हो जाए, लेकिन जो नबी को अपने कंधे पे बिठा ले तो उसकी बरकत से अल्लाह उसे सिद्दीक अकबर और अफदलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक का मर्तबा अता कर देता है. ये सब कुछ हुआ, हिजरत हुई. They came to मदीनतुल मुनव्वरा, मदीने में तशरीफ लाए. रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रहे. हिजरत के 10वें साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ. He passed away 10th year from the migration. हिजरत के 10वें साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ. अब सिद्दीक अकबर all this time he's been watching, he's observing how Rasulullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम managing things. हुजूर कैसे सारे मामलात को संभाल रहे हैं. He was keenly observing. ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे. अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो हुजूर ने एक तरीके से इशारा दे दिया. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so much ill. He was not feeling well. आखिरी जो मर्ज़े विसाल था उसमें हुजूर काफ़ी
ज़ाहिरी तौर पे कमज़ोर थे, कमज़ोरी आ गई थी और सरकार सल्लम इमामत नहीं फरमा सकते थे. He couldn't lead the namaz. The only person then he allowed, he was Hazrat Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. हुजूर की गैर मौजूदगी में जिसे नमाज पढ़ने के लिए आपने अलाउ किया वो हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला. यहाँ से हजरत उमर ने, हजरत अली ने इस बात को लिया, अख्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज सिद्दीक अकबर एज हिज वाइस. अपनी गैर मौजूदगी में अपने नाइब के तौर पे सिद्दीक अकबर को चुना टू रिप्रेजेंट अस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमारे दीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हुजूर ने सिद्दीक अकबर को चुना. इसीलिए जब बात खिलाफत की आई ना तो सब ने कहा जिसे हुजूर ने दीन में इमाम चुना उसे हम दुनिया में भी इमाम चुन लेते हैं. Then he became first खलीफा. सिद्दीक अकबर खलीफा बने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, और खिलाफत थे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला. ये देखें जितने भी अमीरुल मुमिनीन हैं यानी खुलफाए राशिदीन में हज़रत अली रदियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, इन चारों में हज़रत उस्मान गनी को आप निकाल दें तो बाकी जो तीन खुलफा हैं इनकी उम्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बराबर है इन द टर्म. दे पास्ड अवे इन द सेम एज 63, 63, 63, 63 except Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala. So Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he was younger than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 or 2.5 years something. 2-3 साल के वो का फर्क था. अब हुजूर का जब विसाल हुआ तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने and his time, his period of खिलाफत was 2 years and some months. 2 साल 2.5 साल लगभग उनका खिलाफत का ये टाइम था. That was a very very crucial time, very difficult time. Why? You know who is Sayyidina Umar ibn Khattab, how strong he is. Hazrat Umar कितने strong थे और how strict he was, you know that. But when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, all the companions, they were in shock. Even Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, he was saying, if anybody says that Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam has left us, look at this naked sword which I have in my hands. अगर कोई कहता है कि हुजूर हमें से चले गए तो ये तलवार देखो, he was saying that. But at that time the only person who handled this difficult situation, he was Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala, जिन्होंने सारे सहाबा को संभाला, हजरत उमर को संभाला, उस सिचुएशन को संभाला और सबको बताया कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज नाउ वी हैव. अब हमें कैसे दीन को आगे बढ़ाना है, इन सबको मैनेज करने वाली जो जात थी सिद्दीक अकबर. और आप जानते हैं सिद्दीक अकबर को अबू बकर क्यों कहा जाता है? डू यू नो व्हाई इज नोन एज अबू बकर? अब मीन्स डैड, बकर मीन्स इज अ नेम, सो अबू बकर इट मीन्स डैड ऑफ बकर. जैसे हम उर्दू में नहीं कहते अरे यार वो तो उसका भी बाप है नहीं. इफ समवन इज मोर टैलेंटेड इन ए स्पेसिफिक फील्ड, हम कहते ना वो तो उसका भी बाप है, उससे भी आगे. तो अबू बकर का भी माना, ये अब का माना अरबी जबान में लैंग्वेज में ऐसे लेते हैं कि इफ समवन हैज अ वेरी वेरी हाई एंड गुड स्किल्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड देन ही इज नोन एज अब, वो इसका बाप है इस फील्ड में. ये अरबी में भी कहा जाता है, जैसे वी से इट इन उर्दू एज वेल, उर्दू में भी हम कहते हैं तो वैसे ही कहा जाता. बकर नाम का एक शख्स होता था अरब में, he was a famous detective. वो खोजी होता था, खोजी ये सरनेम नहीं है, खोजी उसको कहते थे जो अगर किसी के रास्ते को, किसी के पैरों के निशान देख के रास्ता मालूम करना हो उस टाइम पे कि ये कहाँ गए किधर गए एट दैट टाइम, उसको कहते थे खोजी. तो ये बकर नाम का एक खोजी हुआ करता था. उसकी खूबी ये थी कि वो सिर्फ पैरों के निशान देके बता देता था कि कौन गया किधर गया और वो कहां पहुंचा, ये सारी चीजें वो बता देता था. और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ये था कि वो तो पैर और पैरों के निशान देख के बताता था. हजरत अबू बकर सिद्दीक फिंगरप्रिंट्स देख करके, ये फिंगरप्रिंट्स है ना, इसे देख करके बता देते कि ये किसकी औलाद है, इसके अब जनरेशन में, इसके लाइनेज में ऊपर कौन कौन है, किस कबीले से है, किस ट्राइब से है,
Everything he used to say. सब कुछ सिर्फ फिंगरप्रिंट्स देख के बता देते. तब लोगों ने कहा, oh, he is a dad of बकर. ये बकर के भी बाप हैं इस मामले में. वो तो पैरों के निशान देके ये एक आदमी का पता बताता है, और ये उंगलियों के पोर देख के पूरी नस्ल की नस्ल, खानदान का खानदान बता देते हैं. सारी चीजें बता देते थे. अल्लाह ने वो मलका आपको अता फरमाया था. बैरकर अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का दौरे खिलाफत ये बहुत क्रूशियल था, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, right after that there are many newcomers in Islam. They became rebels. वो बगावत कर बैठे, वो लोग उन्होंने बगावत कर दी. And what they said, look, we used to give zakat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now there is Rasulullah is no more with us. हुजूर हमारे साथ मौजूद नहीं है. Then to whom we should give zakat? We will not give zakat to anyone. ये खत्म हो गया. The system of zakat is ended to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now we are not giving zakat. हम zakat नहीं देंगे. Many tribes they denied to giving zakat and they became non-Muslim, murtad. क्योंकि ज़कात का जो इनकार करता है ये अरकान इस्लाम में से, जो इसका इनकार करेगा वो इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा. तो वो इनकार कर बैठे. तो वो जो कबीले थे, एक तो जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया हो, एंड एट द सेम टाइम द रोमन एम्पायर which was in Syria at that time, and that time the boundaries of Syria the big difference from current day Syria. उस वक्त का जो शाम है उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है. So Sham was under Roman Empire at that time, and they were about to attack Madinatul Munawwara. वो मदीने पे अटैक करने वाले थे. And here these people, the tribes, Arabian tribes, those who denied zakat, they were also planning to attack on Madinatul Munawwara. And now Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala an, he was in a situation where he had to send 11 armies, 11 troops. 11 लश्कर भेजने थे उन्हें. 11 लश्कर सिर्फ किससे? For only these people, those who are denied giving zakat, जिन्होंने इनकार किया उनके लिए. Except the Roman Empire, उसको एक साइड में रखिए, उसका एक मामला अलग है. हज़रत उसामा इब्न ज़ैद, he was just 17 years old. How much? 17 years old. हज़रत उसामा इब्न ज़ैद. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam appointed him as a commander of the army who have to face the Roman Empire. Those were our youths. वो थे हमारे नौजवान. 17 साल की उम्र. What is 17 years? 17 साल की उम्र में he was commanding an army against one of the biggest empire of human history. And that to these people, the Roman Empire, the army was much more, 10 times bigger than the Islamic army. मुसलमान फौज से 10 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा उनकी फौज थी. हुजूर ने कहा था, लेकिन उनको भेजने से पहले हुजूर का विसाल हो गया. Then the companions, they had different opinion. उन्होंने कहा कि वो अबू बकर, look, Usama is still 17 years old. He doesn't have much experience, so we shouldn't send him. Beside Usama, we should appoint someone who is more experienced. Then Hazrat Abu Bakr Siddiq said, अगर तुम सब भी जमा हो जाओ, जो करना है कर लो, जो चाहे तुम बोलो, लेकिन जिस सिपह सालार को, जिस कमांडर को मेरे नबी ने मुकर्रर किया है, नबी ने अपॉइंट किया है, अबू बकर की मजाल नहीं कि उसे बदल दें. I will not change this commander who was appointed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फिर भेजा उन्होंने, और ये सारे थे. कई जगहों से मदीने पे हमले का खौफ था. Then Siddiq Akbar radiyallahu anhu said one historic statement. एक तारीखी जुमला उस वक्त कहा था. आप फरमाते हैं, जब साहबा ने कहा कि एक एक करके जंग की जाए, पहले रोमन एम्पायर से जंग कर ली जाए, उसके बाद फिर ये ज़कात का जो इनकार कर रहे हैं उनसे की जाए, उसके बाद जो लोग मुर्तद हो गए हैं उनसे की जाए, स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर वन जंग की जाए. क्योंकि हमारे पास आर्मी नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है, वी आर लेस नंबर हियर, हमारे पास ज्यादा तादाद में अफराद नहीं है. सब सहाबा की ये राय थी, इंक्लूडिंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला. बट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैंने वो आयत सुनी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह कंप्लीटेड इस्लाम, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, दीन मुकम्मल हो गया, नबी ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब अगर मदीने में बसने वाले इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर मेरा गोश्त जंगल के जानवर आकर खा भी ले तो भी अबू बकर इसे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर कोई नबी के दीन में बाल बराबर भी तब्दीली करने की कोशिश करेगा, अबू बकर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उनसे जिहाद करूंगा जो ज़कात नहीं देते हैं। यहां तक कि ऊंट की एक रस्सी जो हुजूर को देते थे, अगर आज वो देने से मना करेंगे तो मैं उस वक्त तक उनसे जिहाद करूंगा जब तक वो मुझे अदा ना करें। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा। देन पूरी दुनिया ने देखा कि सिद्दीक अकबर ने जो कहा था वही सही हुआ, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरासत and his great management and his great leadership, he proved that he defended very well Islam and Islamic State at that time, और पूरे इस्लामी निज़ाम का उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात में, लाइफ में आप ये समझते होंगे कि जो लीडरशिप होती है, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए हाकिम, बीइंग ए किंग, बीइंग ए पीएम, आजकल के प्राइम मिनिस्टर्स अल्लाह रहम फरमाए कि वी डोंट नो कि क्या क्या उनका हाल है, वही बेहतर जानते हैं। आजकल के लीडर्स उनका क्या क्या हाल है वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ऑल द डे ही यूज्ड टू वर्क फॉर द मुस्लिम उम्मा, पूरा दिन इस मुसलमान उम्मत के लिए मेहनत करते। You have to look up, वो जो जंग के लिए फौजें भेजी हैं उनका ख्याल करना, यहाँ जो मामलात हैं उन्हें देखना, सारी चीज़ें सबका ख्याल करना। और फिर जब रात होती the entire world is sleeping, the only person awake at that time was the Khalifa of Islam, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। दुनिया सो रही है, अबू बकर सिद्दीक जाग रहे हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला, he was secretly following हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। Every night he used to go somewhere, हर रात आप कहीं जाते थे। हज़रत उमर देखते थे कहाँ जाते हैं। देखा उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, he used to go out of मदीनतुल मुनव्वरा where a very very aged person, lady, she used to live there. एक ज़ईफ़ औरत वहाँ बसती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को वहाँ जाते थे। वहाँ जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, he used to feed her with her own hands, with his own hands, अपने हाथों से उस औरत को खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, उसके बाद वापस आते थे। हज़रत उमर was watching, देख रहे थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, what I am talking now is it is actually about 13 हिजरी regarding approximately 13वीं हिजरी की मैं बात कर रहा हूँ। However, the Hijri calendar started from खिलाफत of हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, but the date is counted from हिजरा। हिजरत की जो तारीख थी वहाँ से काउंट की गई, लेकिन उसको एस्टेब्लिश हज़रत उमर के दौर में किया गया। So according to that it was something like 13th हिजरा, हिजरत का 12वां साल था लगभग। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हज़रत उमर रात को गए उसी पहाड़ के पास, मदीने से बाहर, वो बूढ़ी औरत के पास जाके हज़रत उमर ने अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। He just put first luqma in her mouth. The lady says, did Abu Bakr pass away? एक निवाला उस औरत को खिलाना था। वो बूढ़ी माँ कहती, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? हज़रत उमर पूछते, माँ आप तो देख भी नहीं सकती, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज? कैसे जाना आपने कि मैं अबू बकर नहीं हूं? वो बूढ़ी औरत कहती है, लुक, अबू बकर नोज दैट आई कांट च्विंग एनीथिंग। अबू बकर जानते थे
कि मेरे दांत भी नहीं है, मैं चबा नहीं सकती, इसलिए अबू बकर मेरे मुंह में लुकमा डालने से पहले उसे बहुत नरम करके मेरे मुंह में डालते थे। आज बगैर नरम किए तुमने डाला तो मैं समझ गई कि अबू बकर का इंतकाल हो गया है। अब सोचिए, हुजूर ने जैसे ख्याल किया, उस सुन्नत को जिन्होंने जिंदा किया, उस मुजाहिद का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। There are a lot of the things, brothers, we need to learn from the history of these icons. These are our heroes. You may have a soccer fan, cricket fan. Okay, you've been watching it. आप देखते होंगे, but these are the only heroes on real life. Real life. In real life, our heroes are हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला। They are our heroes actually. ये हकीकत में हमारे हीरो हैं। They should be your inspiration. They should be your ideal. हमें अपना आइडियल उनको बनाना है, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसी है। अल्लाह अकबर। अब अगर हम बात करते रहें तो वक्त हमें इजाजत नहीं देगा। बस यूं समझिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में इस्लाम को जिन्होंने बचाया वो हजरत सिद्दीक अकबर है। और हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि कुरान को जिन्होंने जमा किया वो हजरत उस्मान गनी है। इट इज़ मेनी ऑफ अस दे नो दिस, पॉपुलर है, ये बात मशहूर है ऐसे। बट द फैक्ट इज, द हकीकत, द फैक्ट इज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कुरान को जमा कराया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। Before the time of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, Quran was in different leaves, अलग अलग पत्तों में, चमड़ों पे, जिल्द पे, उस पे हुआ करता था। कलेक्टिवली एक बुक की तरह उसको जमा नहीं किया गया था। The first person who did this is Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को जमा कराया और दीन को बचाया। और उससे बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी लाइफ में किया, जानते हैं वो क्या है? He appointed हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु as a second caliph of Muslims. So all these things हजरत उमर have done, the credit goes to हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उमर को भी उसका यकीनन जाता, and these people they never need any credit. उन्हें क्रेडिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहते हैं। Because what they have done for Allah subhanahu wa ta'ala. जो भी उन्होंने किया अल्लाह की रजा के लिए किया, and Allah knows better. कौन कितनी मेहनत करता है, किसने क्या किया है, अल्लाह knows everything. अल्लाह ये सब कुछ जानता है। तो आपने हज़रत उमर को अपने इंतकाल से पहले, विसाल से पहले खलीफा मुकर्रर किया, और खलीफा मुकर्रर करने के बाद at the age of 63 हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was passed away, and that was approximately 13th हिजरा according to हिजरत का 13वां साल था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और आपका विसाल हुआ। आफ्टर दैट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला became खलीफा, और हज़रत उमर के दौर में क्या क्या हुआ वो हम कल इंशाअल्लाह रज़ीम समाअत करेंगे। अब यूँ समझिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, during his period, during his ruling time, Islam has reached to Iraq, to the Syrian land. The Islamic forces, they were clashing, one side with Persian Empire and the another side with the Roman Empire. इधर रोमियों से उधर फारसियों से, दोनों से एक साथ जंग हो रही थी। और जंग भी कैसे हो रही थी, वी गोना लिसन इंशाअल्लाह रज़ीम, आगे हम सुनेंगे हज़रत उमर के दौर में। बस आज इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात में उनकी जो मोहब्बत है, अल्लाह हमें उस मोहब्बत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हमें उस जानिसारी का सदका अता फरमाए, दीन के लिए वो कुर्बानी पेश करने का अल्लाह हमें जज्बा अता फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई खता हो, गलती हो, लग़ज़िश हो, अल्लाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह खालिस इसे अपनी रज़ा के लिए हमसे कबूल फरमाए, और अल्लाह हम सब से वो काम ले जिससे वो राज़ी हो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व ख़तियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।